start with the greatest name of Almighty Allah, who created the universe, the sun, the moon, who runs rivers, lakes, and who runs the clouds full of rain. He has given us an opportunity to say prayer 5 times a day. We humbly request Him and pray Him to keep us safe from the evils around us. Good afternoon, ladies and gentlemen. Today, I will discuss with you some common errors committed at the time of meetings. You know, the adversarial system in our country starts by way of filing a suit in the shape of a plaint. When we file a plaint in the court of a competent jurisdiction, we commit certain mistakes which are to be rectified. Likewise, nowadays, the 3 different kinds of the civil judges, senior civil judges are presiding in the courts. When we are going to file a civil suit, we have to specifically address the name of the senior civil judge. If we are going to file a civil suit, we should mention the name of the court on the first line, like Senior Civil Judge, Civil Division. It means we are addressing the pleading to the Civil Division. When we have to file a family suit, we have to mention the correct name of the judge on the first line. That may be the Senior Civil Judge, Family Division. Similarly, the third Senior Civil Judge is the Senior Civil Judge, Criminal Division. So, when the first line of our drafting is incorrect, it will give a bad impression upon the personality of the upcoming young lawyer. So, I have enumerated few common errors and mistakes which we commit at the time of pleadings. We will see one by one. We have to mention the correct name of the court. If there is a mistake on the opening page of the pleading, it will give a bad impression about the author who has written the document. So we should avoid making mistakes on the first page of the petition. The name of the court should be written correctly, and the first page should be written correctly. The names of the parties should be spelled properly. Sometimes the names are very roughly spelled, which give another impression. The pronunciation and the correct name of the parties, the plaintiff and the defendant, should be spelled according to the name which the parties call. We have to keep an eye on the first page of the pleading. When a suit is filed, the senior civil judge has to put his stamp on the first page. If we start from the one corner and we finish from the other corner, we leave no space on the first page. It will be difficult for the administrative side to put their stamp, to write the name of the judge to whom the case is being entrusted, and to mention the date of institution, to write the name of an advocate and the date of presentation. So you should have to make some space of about 8 to 10 lines. Such space should be left blank for the purpose of the court, so that the court receiving the case should place the stamp on the first page of it for the purpose of marking. Similarly, we should take care about the margins of the page. We have to leave a space on the one side of the page, because when the case is entrusted to any judge, the judge put the stamp of file, he writes the date and put his signatures. If we leave no place on the page, it will be difficult for the judge to put the file stamp on the margin. So, if there is no space, we put the file stamp on your written material, and it may hide the valuable contents of the drafting. Excessive and unnecessary emphasis. When we write the plaint, we have to give the brief facts. Brief facts means the brief facts.
Sometimes we have seen upland which started from page 1 and ends at the page 50. So such kind of lengthy pleading which cannot be read by the party or the council or the presiding officer, it will be difficult for to understand. This is an art of advocacy. You have to reduce the facts to the brief level. So the contents should be brief. The sentence should be in a well-mannered arrangement. होता क्या है, आपने बयान करना है कि फ्री कैंप का सामान भेज पड़ा हुआ, तो पहले शादी करेंगे, फिर रुखसती करेंगे, फिर सामान भेज देंगे, फिर उसकी तरतीब होगी। तो निजामुद्दीन कहता है कि वो किसी के घर गया, कहने लगा आपकी चारपाई चाहिए था। तो घर से एक आदमी निकला, उसने कहा जी बात ये है कि हमारे घर में एक ही चारपाई है, उसके ऊपर मेरी बेगम और मेरे वालिद साहब सोते थे, तो हम नहीं आपको दे सकते। तो सवाल करने वाले ने कहा भाई चारपाई नहीं देनी ना दें, लेकिन अपनी तरतीब तो कम से कम ठीक करें। तो प्लीडिंग जो होती है इसकी तरतीब ठीक होनी चाहिए। जो फैक्ट पहले आया है उससे पहले बयान होना चाहिए, जो बाद वाला है उसे बाद में होना चाहिए, और जो उसके बाद उस हिसाब से होना चाहिए। पंक्चुएशन का ख्याल रखना चाहिए। जहाँ पे समटाइम्स ऐसा होता है कि जब हम लिखने बैठते हैं तो एक पैरा शुरू करते हैं, वी स्टार्ट अ लाइन, द पेज फिनिशेस बट आवर सेंटेंस कंटिन्यूज। होना ये चाहिए छोटे छोटे फिक्रे हों, स्मॉल सेंटेंसेस हों, जहाँ पे सेंटेंस खत्म हो वहाँ पे फुल स्टॉप लगे, जहाँ कॉमा की जरूरत है वहाँ पे कॉमा लगे, जहाँ पे अपॉस्ट्रोफी की जरूरत है वहाँ पे वो लगे। तो इसकी भी बड़ी अहमियत है, ये भी होनी चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। There are 10 kinds of the cases which are being filed in the family courts. The first one is the resolution of marriage, including khula. अब सूरत हाल मुख्तलिफ हो चुकी है। शरीयत कोर्ट ने फैसला दिया है कि जो खातून खुला की डिग्री लेने आएगी, she has to return the हकमैर to the husband. जो हकमैर उसने वसूल किया वो उसने वापस करना है। तो ये जब भी खुला की प्रेयर करें तो साथ में हकमैर भी मांगा होता है। एक तो मुझे खुला दिया जाए, मैं अपना हकमैर वापस करती हूँ, और आगे लिखा होता है कि मेरा इतना 2 कनाल का हकमैर मुकर्रर हुआ था, वो भी डिग्री किया जाए। तो ये गलत कमेंट नहीं करना, वो काम करना है तो आपको भी अच्छा लगे, तो कानून के मुताबिक। इसी तरह दावत के केस में लिखा होता है कि ये हमारा हकमैर मुकर्रर हुआ था और ये मुझे अदा नहीं किया। तो देखिए उसमें अगर निकाहनामा है तो लिखें उसके कानून नंबर 12 में, 13 में, 14 में, 15 में, 16 में रेलेवेंट प्लेस कौन सी है और कितना हकमैर लिखा गया है, और ये जरूर लिखें कि उसकी कीमत कितनी है। फर्ज करें उसने लिखा है कि 5 मरले का मकान दिया जाएगा, लेकिन कीमत नहीं लिखी है, तो आप उसकी कीमत डिटरमिन कर दें कि हमारी लोकेलिटी में इतनी अमाउंट है, इतनी वैल्यू हो सकती है प्रॉपर्टी की, ताकि कोर्ट जब उसको डिग्री करे तो कल को एग्जीक्यूशन के वक्त ये मुश्किल ना पेश आ जाए कि अब इसकी कीमत कितनी है, ये बंदा तो मालिक नहीं है, प्रॉपर्टी इसके पास नहीं है। तो दैट विल स्टार्ट अ लेंथी लिटिगेशन। मेंटेनेंस अलाउंस के हिसाब से एक माँ बच्चे को दूध पिला रही है, तलाक उसको हो चुकी है, तो वो भी हकदार है मेंटेनेंस अलाउंस की, जब तक वो 2 साल तक बच्चे को दूध पिलाएगी। उसका पीरियड भी क्लियरली मेंशन करना चाहिए, जो कि नॉर्मली नहीं किया जाता। रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स है, थोड़ी सी मैं आप लोगों की भी पार्टिसिपेशन चाहूँगा। क्या रेस्टिट्यूशन का सूट जो है वो कौन दायर करता है? दोनों कर सकते हैं। औरत कर सकती है कि ये खामन मुझे आबाद करे, और खामन कर सकता है कि मैं बीवी को आबाद करना चाहता हूँ, ये मुझे जो है अपने पास। कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन है, कस्टडी पिटीशन में लिखना चाहिए कि बच्चे की एज कितनी है। बहुत सारी पिटीशंस में ऐसे होता है कि नाम तो लिख दिया है कि बच्चा बुशरा फातिमा, आगे उम्र नहीं लिखी कितनी है, वो बाद में पता चलता है कि उसकी शादी हो गई है और 4 बच्चे हैं, तो वो केस चल रहा होता है मायने में। उसको लिखे, उसकी एज लिखे, उसका स्टेटस लिखा। थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे इसको, आपको पिछला पेज चाहिए। इसी तरह की गार्डियनशिप है जी। आप बताएंगे कि गार्डियनशिप और कस्टडी में क्या फर्क होता है?
guardianship only seeking the recognition for the welfare or education purpose. Custody is the physical custody from one person to another person. 5वें नंबर पे कस्टडी है, उसका दावा दायर हो सकता है, एप्लीकेशन भी हो सकती है। 6ठे नंबर पे गार्डियनशिप है। गार्डियनशिप से मुराद गार्डियन ऑफ पर्सन भी है, गार्डियन ऑफ प्रॉपर्टी भी है। जब गार्डियन ऑफ पर्सन अपॉइंट होता है तो कस्टडी ऑटोमेटिकली उसी के पास होती है जो गार्डियन ऑफ पर्सन होता है। जब भी आपने गार्डियनशिप फाइल करनी है तो लिखना है कि इसकी कितनी प्रॉपर्टीज है माइनर। सपोज माइनर कहता है रहेंगे खान में, एक प्रॉपर्टी उसकी लाहौर में है, एक मुल्तान में है, एक रहेंगे खान में, तो आपने 3 अलग से सूट नहीं फाइल करना, एक ही फाइल करेंगे और उसकी डिटेल बता देंगे प्रॉपर्टी कितनी है, कहाँ पे सिचुएटेड है और उसकी वैल्यू। सर गार्डियनशिप इन सेम पर्सन के लिए हो सकती है? ये पोसेशन ऐसा करते हैं कोर्ट ऑफ प्रोटेक्शन मेंटल हेल्थ ऑर्डिनेंस के तहत। आगे आ गया जी जस्टिफिकेशन ऑफ मैरिज। ये क्या होता है? जस्टिफिकेशन मैरिज कौन कर सकता है दायर? दोनों ही कर सकते हैं। कोई भी कर सकता है। तो मियाँ बीवी एक दूसरे को कहना शुरू कर दे और निकाह अगर ना हो तो वहाँ पे ये फाइल हो सकता है। डावरी आर्टिकल्स का बड़ा प्रॉब्लम है आजकल। समटाइम्स ऐसा होता है कि हिंदू खत्म दावा कर रही है और लिस्ट में जाए नमाज भी है, कुरान मजीद भी है, बेल भी है, ये चीज़ें होती हैं। तो ये कंप्यूटर ऑपरेटर से ये देख के आपने करनी है कि जो चीज़ें डावरी में दी जाती हैं वही हैं। ऐसा ना हो कि आप वो चीज़ें मेंशन कर दें जो किसी ने ऐसे ही मेंशन की हुई हैं और जो दी नजर आती है, और उसकी वैल्यू भी बताया कि कितनी प्रॉपर्टी है, ये कितनी वर्थ है इसकी। समटाइम्स ये होता है कि शादी हुई है 1998 में, लिस्ट में लिखा हुआ है कि इसको मोबाइल फोन दिया गया जो कि 2022 में आ रहा है, तो वो भी देखना है कि जो चीज़ है जानवर वही लिखनी चाहिए। ये है जी प्रॉपर्टी एंड बिलोंगिंग्स ऑफ वाइफ एंड चाइल्ड। इसका कोई दावा आज तक हमारे पास नहीं आया। 13 साल सर्विस हो गई है, कभी किसी ने दावा दायर नहीं किया। हालांकि खातून कहती है कि मेरे कपड़े, जूते, जेवरात, सामान उसके घर रह गए। तो अगर माइनर चाइल्ड है तो उसका भी तो कोई ना कोई होगा ना, कोई बैग, बस्ता, कोई जूता, कोई कपड़ा, कोई चीज़, उसकी बिलोंगिंग्स का भी शुरू फाइल होना चाहिए, किया जा सकता है। और ये लास्ट पॉइंट है 10th, ये अमेंडमेंट के तहत इंटर हुआ। इससे पहले ये होता था कि जो शराइत होती थी निकाह नामा की, वो फैमिली कोर्ट एंटरटेन नहीं करती थी, उसके लिए सिविल सूट फाइल किया जाता था, तो सिविल जज साहब समाप्त करते थे। अब ये अमेंडमेंट के बाद इसको शामिल कर दिया गया है। एनी मैटर अराइजिंग आउट ऑफ निकाह नामे से रिलेटेड कोई भी मामला होगा तो वो फैमिली कोर्ट में दायर होगा, वही उसको डिसाइड। नेक्स्ट पेज। सर इसमें एक मैं चाहूँगा कि बच्चों को थोड़ा सा गाइडेंस दी जाए फैमिली केसेस के मामले में, कि जहाँ पे खास तौर पर खुदा का या तकरीबन लगा के केसेस फाइल होते हैं, उनमें इंतहाई इमोरल और भोंडे किस्म के इल्ज़ाम होते हैं जो कि ज़रूरी नहीं है। सिर्फ नफरत होना या साथ ना रहना वो काफ़ी है, उसके लिए जो मखसूस चीज़ें हैं उसके बारे में थोड़ी गाइडेंस दे दें। क्योंकि जिस तरह हमारी बच्चियाँ भी अब तो एडवोकेट्स बहुत हैं, जिस तरह की एक रूटीन चली आ रही है हमारे मुंशी साहबान या कंप्यूटर ऑपरेटर को जो दी हुई है, वो इस तरह के इल्ज़ाम के जिनके ऊपर अलग फौजदारी कार्रवाई चल सकती है, वो सारे लिखे होते हैं, वो तो नहीं होनी चाहिए। अक्सर बेशक ये होता है कि जब आप प्लेन ड्राफ्ट करते हैं, मेरे पास 2 दफ़ा हुआ है सर, एक दफ़ा रंगिया खान में हुआ और एक दफ़ा जहानिया में हुआ। आई वॉज सिटिंग इन माई कोर्ट रूम, खातून आई, तनसीब निकाह का दावा था, पूछा कि आप तनसीब क्यों लेना चाहती हैं? वो कहने लगी मैं तो तनसीब नहीं लेना चाहती। उसको पूछा भी यहाँ पे अंगूठा लगाओ, अंगूठा लगा दिया, केस वापस हो गया। वकील साहब आए तो फिर उन्होंने झगड़ा शुरू कर दिया, क्योंकि अभी तो मेरी फीस बकाया रहती थी, केस आपने पहले फैसला कर दिया। तो कोशिश करें कि वो जो पार्टी चाहे वो क्लेम आप उसका सबमिट करें, ना कि अपनी तरफ से आप वो ऐसे पैराग्राफ ऐड करते हैं जो कि किसी की जो है स्कैंडलस हो, इमोरल हो, अगेंस्ट दी लॉ हो और अखलाकियत से जो हटी हुई चीज़ें होती हैं। हमारे पास फैमिली केसेस में शुरू में ये लिखा होता है बंदा कि भाई ये औरतों से जो है ख़वातीन से तल्लुक़दारी रखता है, शराब पीता है, नशा करता है और बेशुमार इल्ज़ाम लगाए जाते हैं जो कि वो नहीं होते। तो कोशिश करें साफ़ सुथरी जो है वो प्लीडिंग रखें आप। हम इंशाल्लाह ऐसा वक्त आएगा वो ट्रेंड चेंज हो जाएगा कि ये जो इस तरह की जो फ्रिवलेस लिटिगेशन है जो बगैर किसी फ़ायदे के होती है उससे बचत हो जाएगी। जब अच्छी ड्राफ्टिंग करेंगे आप लोग, बेहतर तरीके से लिखेंगे तो उसका फ़ायदा भी पहुँचेगा। ये कुछ सिविल केसेज हैं।
सिविल केसेस में भी कभी कभार मिस्टेक्स हो जाती हैं हमसे। मसलन एक बंदे ने दावा दायर किया सूट फॉर डिक्लेरेशन फॉर करेक्शन ऑफ हिज डेट ऑफ बर्थ इन CNI से। अब शनाख्ती कार्ड की कॉपी तो लगाई है दावे के साथ, लेकिन अर्जी दावे में लिखा ही नहीं है कि शनाख्ती कार्ड का नंबर क्या है। यहाँ से दावा जो है वो चला जाता है इस्लामाबाद फॉर द पर्पज ऑफ रिटन स्टेटमेंट। वो 2 महीने बाद वो ऑब्जेक्शन रेज करते हैं कि इसका तो नंबर ही नहीं लिखा हुआ, तो क्या हम अप्लाई करें, क्योंकि हमने तो कंप्यूटर से देखना है कि इसका क्या नाम है कैसे। तो कोशिश करें कि उसमें सिविल लिटिगेशन में भी आप जो प्रॉपर पर्टिकुलर्स हैं वो प्रोवाइड करें। ये टार्ट क्लेम्स हैं, लॉ ऑफ टार्ट्स आपने पढ़ा है, तो बताएगा काजेशन क्या होती है। एनीबॉडी फ्रॉम द हॉल? वजह सूट फॉर समथिंग वजह लॉ ऑफ काजेशन जो है उसके बेस पे टार्ट सारा चलता है। एक बंदे ने दूसरे बंदे को बुरा भला कहा, कोई चिट्ठी लिख दी, कोई अखबार में गलत खबर लगवा दी उसकी, तो उसके खिलाफ वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है। इस तरह के सूट्स में आपने स्पेसिफिकली लिखना होता है कि मेरा कितना नुकसान हुआ है, मेरी कितनी कितनी इसने खराब की है। लोग कोर्ट फीस से डरने के लिए क्लेम करते हैं 25,000 रुपया ताकि इस पर एग्जाम हो जाए कोर्ट फीस। तो वो जो है फैक्ट्स को आपने क्लियरली लिखने हैं, कोई सिविल सूट हो, फैमिली केस हो या क्रिमिनल लिटिगेशन हो। नेक्स्ट पेज, अगला पेज पे बताओ। सबसे ज्यादा रहींदारना में जो केसेस हैं वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के हैं। 2 parties entered into an agreement which was specifically enforceable by law, and one party violated the terms and conditions of the agreement. The other party comes in court. इश्माल लिटिगेशन है, इसमें भी आपने क्लियरली लिखना है कि आपका एग्रीमेंट क्या हुआ। 4 चीजें आपने हमेशा ख्याल रखनी है whenever you are drafting an agreement, a contract or a suit for specific performance. Number 1, date. Number 2, time. Number 3, place. Number 4, witnesses. ये चीज़ें आपने डिटेल बयान करनी है whenever you are going to draft a plain or written statement, ताकि ascertain किया जा सके कि what are the correct things. Next. हम बैठ जाओ अभी के बाद में सॉल्व वो वैसे रोल भेज दे, अगले दिन देता रहेगा। अच्छा जी, आप बताएंगे इक्विटेबल क्लेम्स क्या होते हैं? हम यहाँ से शुरू करेंगे, पहला सोफा जो है फर्स्ट सोफा। व्हाट आर द इक्विटेबल क्लेम्स? इक्विटी पढ़ा है आपने, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पढ़ा है, तो क्या होता है क्लेम्स? मसलन जो हम दावा दायर करते हैं सूट फॉर डिक्लेरेशन, डिक्लेरेटरी सूट जो होता है, सूट फॉर पोजेशन जो होता है, सूट फॉर इंजेक्शन जो होता है, सूट फॉर रेक्टिफिकेशन जो होता है, सूट फॉर कैंसिलेशन जो होता है, सूट फॉर डिसीजन जो होता है, ये जो 5, 6, 7 किस्म के सूट्स होते हैं जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में प्रोवाइडेड हैं, इनको इक्विटेबल रिलीफ कहा जाता है, इनको इक्विटेबल क्लेम कहा जाता है। ये इक्विटेबल क्लेम्स आपने जब भी बयान करने हैं तो इनकी जो है वो बताना है कि क्या जरूरत है। ये मैं इस स्टेज पे खड़ा हूँ, मैं आप लोगों को देख सकता हूँ। एक छोटा बच्चा है वो आपको देखना चाहता है, 2 बॉक्सेज हैं, एक आपने मुझे दे लिया है, उस बच्चे को दे दिया। वो नीचे बॉक्स रख के भी खड़ा होता है लेकिन आगे से हाल को नहीं देख पाता। लॉ कहता है, लॉ ऑफ इक्वालिटी कहता है जी ठीक है आपने 2 चीजें थी तकसीम करते दोनों में, लेकिन इक्विटी ये कहती है कि नहीं, वो छोटा बच्चा है, ये दोनों बॉक्सेज उसको दे दिए जाए, उसको ऊपर खड़ा कर दिया जाए तो उसका व्यू क्लियर हो सकता है, वो आगे से सही तरह से देख सकता है। तो इक्विटेबल क्लेम जब भी आपने करना है तो उसमें आपने इक्विटेबल रिलीफ जरूर मांगना। मसलन आपने सूट फाइल कर दिया कि ये मेरी ज़मीन है, मेरे वालिद से मुझे मिली है, दूसरी पार्टी ने इसका इंतकाल अपने नाम पे करवा दिया, इंतकाल आपने मंसूख कराना है और साथ में कब्जा आप मांगते होंगे। अब क्या होता है कि दावा डिग्री हो जाता है, इंतकाल जो है, रजिस्ट्री जो है वो कैंसिल हो जाती है, पोजेशन आपने मांगी नहीं।
नया सूट भी नहीं फाइल कर सकेंगे सेक्शन 42 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत, एग्जीक्यूशन पिटीशन में भी कोई फायदा नहीं होगा। तो कोशिश करनी चाहिए कि whenever you are drafting any equitable claim, you must mention the equitable remedies which are available at the time of filing. Next. ये बड़े केस हैं बानो बाजार के, जायदादें हैं, एक ने किराए पे दी हुई है, दूसरे ने दी हुई है और मालक कोई भी नहीं है, मालक PMA है या CMA है या कुछ वाई हुकूमत है या प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, ये महकमा औकाफ है या कोई और है। So whenever you are drafting a petition for ejectment between the landlord and the tenant, उसमें लिखें कि कहाँ आपने अपना एग्रीमेंट किया, कितना उसमें किराया तय हुआ, सालाना इजाफा कितना था, कब इसने खाली करना था, उसकी डिटेल होनी चाहिए। नेक्स्ट, जब भी कोई केस आपके पास आता है ऐसे नहीं आ जाता कि लोग सीधा केस करें। लोग करते क्या हैं, बड़ी आपस में बैठक होती है, माँ बाप बहन भाई अजीजों का रिश्तेदार पंचायत थाना इधर उधर चल चला के बड़ी मुश्किल के बाद फिर केस आपके पास। तो केस को सीरियसली लेना चाहिए। आप मजाक में हंसी में आप उसका दावा दायर कर दें और आप उसमें करेक्ट पर्टिकुलर नाम ड्राफ्ट करें जो आपको चाहिए करने में, तो नुकसान हो जाता है। अमेंडमेंट ऑफ एक्ट वहां पे होती है जहाँ कोई चीज 7 रह गई है, एक चीज थी आपने मेंशन नहीं की है तो पार्टी का नुकसान हो गया। जज गलत फैसला करते हैं, उसकी 4 अदालतें हैं, सिविल कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। 4 अदालतें इसलिए बनाई गई हैं कि एक जज की गलती दूसरा सही कर दे, वकील की गलती कोई नहीं सही कर, फिर नहीं अलाउ होगा, उसका फ्रेम चेंज हो जाएगा। आर्टिकल 4 जो है CPC का वो कहता है कि फ्रेम ऑफ सूट जो है ना उस पर आपने बड़ा खास किया। लेकिन तो आप ये कर सकते हैं कि मकान है तो उसमें पंखा भी है, खिड़कियां भी हैं, दरवाजे भी हैं, ये तो शामिल किया जा सकता है। ये नहीं कह सकते कि एक मकान की बजाय जो है 15 मकान है वहाँ पे, फ्रेम ऑफ सूट जहाँ पे चेंज हो जाएगा वहाँ पे फिर अमेंडमेंट लगेगी। तो कोशिश करें सीरियसली whenever you are drafting any document of claim, you should be very clear from the point of view. When you are drafting any document of claim, you should be very clear from the point of view. What you should have to ask for the court of competent jurisdiction. Next, हाकिम अली कुरैशी बड़े सीनियर काउंसिल थे, तो मैंने दरखास्त का पैरा नंबर 5 ऐसे लिख दिया कि अल्लाह एक है, आगे पैरा नंबर 6 लिख दिया। तो जवाब जब आया तो उसमें तो वही रूटीन थी कि वजह लाइल में इनकार है, वजह लाइल में इनकार है, गलत है, गलत है। तो पढ़ें, जब भी whenever you are writing a reply to any application, any claim, you should go through the contents of the same. Without discussing the contents, you cannot write the correct reply or answer. होता क्या है, जवाब आपका दायर होता है तो कुछ चीजें सामने आती हैं, सामने आने से फिर मामला पार्टी के सेटल हो जाते हैं। सेटलमेंट ना हो तो फिर ट्रायल की तरफ चले, सेटलमेंट ना हो तो फिर ट्रायल की तरफ चले। हमारे पास कोई डिस्कवरी के लिए, इंस्पेक्शन के लिए, इंटरोगेटरीज के लिए कोई अभी डिस्कवरी के लिए, इंस्पेक्शन के लिए, इंटरोगेटरीज के लिए कोई एप्लीकेशन कभी नहीं तैयार हुई, होनी चाहिए, करनी चाहिए। CPC अवेलेबल है, आप जमा कराएं एप्लीकेशन, दूसरा पार्टी उसका जवाब। नेक्स्ट, ये डिस्कवरी वाले पॉइंट को जरा थोड़ा एलैबोरेट करें। CPC का है कि कानून ये है कि एक पार्टी अलाइज करती है कि ये मेरा क्लेम है, दूसरी पार्टी अलाइज करती है कि मेरा ये इनकार है या कुछ पार्शल हमने हमारी पेमेंट हो गई है। अगर वो काउंटर क्लेम करता है तो वो सेट ऑफ में चला जाएगा। एक बंदे ने एक बंदे को गाय बेची, उसने गाय के पैसे दे दिए, जवाब दावे में उसने लिखा कि जनाब मैंने तो इसको 2 बकरियां दी थी, तो ये हमारी सेटलमेंट हो गई है। तो कोर्ट फिर उसमें डिस्कवर कराएगी कि पता कराएंगी क्या ऐसा है कि नहीं, उसका बेटर स्टेटमेंट जो है वो कॉल किया जाएगा फ्रॉम प्लेंटिफ, क्योंकि ये नई चीज़ आई है जवाब दावे में, ये आपकी प्लेट में नहीं है, आप इसका रिप्लाई फाइल करें। वो कहेगा कि मैं इंस्पेक्शन करना चाहता हूँ, मुझे आप इजाज़त दें कि ये कहाँ पे इसने जो मैंने इसको पेमेंट की शेप में, साइंड की शेप में जो मैंने चीज़ें इसको दी हैं, इसने अपने घर में बांधी हुई हैं, उसकी मिशन पॉइंट कर दिया जाए, इसको भिजवा दिया जाए, पता ना चले कैसे। तो ये सिचुएशन है, ये चीज़ें। नेक्स्ट,
डिस्कवरी की एप्लीकेशन किसी टाइम भी दे सकते हैं? नहीं, ये आप किसी ने ऑर्डर 9 में कहा है कि आपने इनिशियली टाइम पे देनी दावा गैस अपील पे तो आप एप्लीकेशन लेके चले जाएं, वो नहीं यूज करें। ऑर्डर 9 CPC कहता है एनी काइंड ऑफ एप्लीकेशन जिसमें डिस्कवरी है, इंस्पेक्शन है, लोकल कमीशन है, इंटरव्यूटरी है, व्हाटएवर दी एप्लीकेशन यू वांट टू फाइल वो लगा दें साथ। अगर दरखास्तें चलती रहें तो फिर केस का फैसला नहीं हो सकेगा। सही बात। हमारे वक्त में तो बड़ा अच्छा वक्त होता था कि जिस दिन मूड नहीं होता था शादी कराने का एक दरखास्त दे देते थे, दरखास्त करेंगे लोकल कमीशन, पहले 4 दफा पहले भी फैसला हो चुकी है। अब वो केस जवाब दरखास्त पे चला जाता था, पेशी पड़ जाती थी। अब CPC अमेंड हो चुकी है, 1908 की बजाय अब 2022 आ गया। अब चीजें उन्होंने चैनलाइज कर दी, कहते हैं कि बाद में आप एप्लीकेशन नहीं दे सकते। ये ट्रायल शुरू हो जाता है। ट्रायल में क्या होता है, लेकिन अपनी शहादत देता है, डिफेंडेंट अपनी शहादत देता है, क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होती है, फैसला हो जाता है। ट्रायल में कोशिश करें कि पार्टी से पूछें कि क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे करना है। पार्टी से मशवरा करने से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, पूछने से सुनने से बड़ी चीज़ें क्लियर होती हैं। उसको एट लेंथ समाप्त करें। जो भी आपका साइल है, जो भी आपका क्लाइंट है, जो आपको फीस भी देता है, आपका टाइम भी देता है और आपकी रिस्पेक्ट भी करो। ये फार्मूला वकीलों वाला ही हम भी अप्लाई करते हैं और हम इसमें ज़्यादा कामयाब हैं। एक दिन एक रिमांड पे बंदा पेश हुआ, मैंने कहा इसका मुद्दई किधर है? उन्होंने कहा जी बरामदे में खड़ा है। मैंने कहा बुलाएं उसे। उससे पूछा कि बताओ वो क्या कहते हो? उसने मुझे एक एफिडेविट दिखाया, कहता जी मेरा तो राजीनामा हो गया, 10 दिन हो गए, मैं लेके फिर रहा, मेरी बात ही नहीं सुनता। आपने मुझे बुलाया है। मैंने कहा जी जरूर उठा लगा। मैंने उसका अंगूठा लगवाया। मैंने कहा इसकी हथकड़ी वो जरूर। अगर उसकी बात ना सुनी जाती है तो वो जाना था बंदा जुडिशल, फिर बेल एप्लीकेशन आनी थी, फिर ट्रायल होना था, फिर नकली तकसीम होनी थी, फिर वकील साहब मसरूफ, कभी जज छुट्टी पे, तो फिर ऐसे काम होना। तो whenever you give the opportunity to the parties for hearing, उसको सुने, समाप्त करें, काफी सारी चीजों का आपको जो है उनकी तरफ हो जाता है। ये पोस्ट ट्रायल कुछ केस होते हैं उसमें अपील नहीं करनी बनती, नहीं करती, लेकिन करनी चाहिए। मसलन नेक्स्ट पार्टी दावा डिग्री हो गई, कल को मजलूम गिरफ्तार होकर आया, वो कहेगा कि जेल में दरखास्त मेरी तमील नहीं हुई, मनसूख हो जाएगी उसकी कार्रवाई। अगर आपने एक्स पार्टी डिग्री के खिलाफ अपील फाइल की हो और डिग्री हो सेशन जज साहब की या डिस्ट्रिक्ट जज साहब की, तो फिर मजलूम कहाँ आएगा? वो जिस कोर्ट की डिग्री है वो भी मनसूख करेगी, तो कुछ ना कुछ सेटिस्फाई हो जाएगी डिग्री जो आपका क्लेम है। नेक्स्ट, इंटरमीडिएट सूट क्या होता है? इस साइड से बताएंगे एनीबॉडी फ्रॉम द सेकंड सोफा, व्हाट इज द इंटरमीडिएट सूट? एक चीज के साथ जब 2 दावेदार हो और वो चीज हो किसी और के पास और उसे ना समझ आ रही हो कि भाई ये दावेदार सच्चा है या ये दावेदार सच्चा है, तो वो आ जाता है कोर्ट पे कि भाई कोर्ट डिसाइड कर ले कि ये चीज बनती किसकी है ताकि मैं उसको दे सकूं। ठीक है मैडम, ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। इसका इंटरमीडिएट सूट भी हमारे पास कभी नहीं है। पार्टीशन के बेशुमार दावे आए और बेशुमार अपने फैसले। जो नया पार्टीशन एक्ट है बड़ा सिंपल हो गया, कहता जी कि कोर्ट जो है उसमें डिक्लेयर भी करेगी कि कौन मालिक है कौन नहीं मालिक। ये नहीं हो सकता कि पार्टीशन का सूट ज़्यादा चल रहा हो तो आप दावा इस्तकरार है आपकी ज़्यादा तैयार करें, आपने उसी में इस्तकरार मांग लिया। अगर आप मुद्दई हैं तो अपने अर्जी दावे में क्लेम करेंगे, अगर आप मुद्दल हैं तो अपने जवाब दावे में क्लेम करेंगे, फिर डिक्लेयर को करेंगे मालिक कौन है, कौन कितना मालिक है, उसकी मलकियत पहले डिसाइड हो जाएगी, फिर पार्टीशन जो है वो प्राप्त होगी। कैंसलेशन के केसेस हमारे पास बेशुमार आते हैं। कैंसलेशन ज़्यादातर इंतकाल की होती है या कैंसलेशन होती है रजिस्ट्री की। यहाँ पे ये ट्रेंड है कि एक कॉलोनी है उसमें 10 प्लाट है, कुछ गलियों का रकबा है। अब क्या होता है जैसे वो गलियों का रकबा जो है वो शो कराते तो वो नक्शा किसी का, घर किसी का, मकान किसी का, रजिस्ट्री होती है। तो वो भी आप कोशिश करें कि जब आप ड्राफ्ट करें सूट फॉर कैंसलेशन तो उसके कंटेंट्स पर्टिकुलर्स दें कि असल मालिक कौन है, उसकी उसका नक्शा क्या है, आप कौन है, आपका क्या स्टेटस है, और जो आपको रिलीफ चाहिए वो क्या है, और जो डिफेंडेंट ने आपके साथ किया है उसकी क्या सिचुएशन।
सिर्फ ये कह देने से कि ये रजिस्ट्री जाली है, फर्जी है, गलत है, कैंसिल की जाए, वो अपना था। एडवांस एज आ गई है, मॉडर्न दौर है, उसको थोड़ा सा अपनी रीड को चैनलाइज करना पड़ेगा। रेक्टिफिकेशन है, कोई दुरुस्तगी करनी है आपने। एक बंदे के पास 2 मकान थे, उसने कहा जी मेरा मकान एक को मैंने फरोख्त कर दिया, अब 2 है, अब कौन सा चाहिए उसमें से? तो वो भी रेक्टिफाई कराया जाएगा कौन सा या कोई एरर है, डिसीजन है तो खत्म करना है आपने। आपने जमीन बेची एक शख्स को कि ये 10 एकड़ मैंने आपको दे दी है, पेमेंट भी होगी, अब क्या हुआ? वो 10 एकड़ मोटरवे में आ गया, अब तो जमीन ही नहीं रही है, तो लिखना पड़ेगा कैसे कर। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस पे आपने बताना है कि क्या आपको परफॉर्मेंस चाहिए। एक बंदे से आपने 2 एकड़ जमीन खरीदी, 1 एकड़ उसकी चलेगी मोटरवे में, 1 तो बच गई, उसका लिखेंगे कि जो 1 बच गई है वो मुझे दे दी जाए, और जो मोटरवे में चली गई है उसकी मुझे रिटर्न कर दी जाए, अमाउंट पैसे दे दिए जाए। आपका एग्रीमेंट हुआ था 1980 में, उस वक्त डॉलर 2 रुपये का था, अब डॉलर की रेट और आप उसको कहेंगे कि जो वापस करनी है कीमत वो मौजूदा प्रेजेंट रेट के हिसाब से मुझे रिटर्न। तो इसमें रिसेशन होना काइंडली क्लियर कर दें, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं। कुछ नहीं, रिसेंट का मतलब होता है खत्म हो जाए। नहीं, ये रिसेशन का सर जैसे होता है ना कि पार्टीज ने जो भी बेनिफिट लिए होते हैं वो वापस हो जाते हैं, पार्टीज अपनी सूट फाइल करने से पहले वाली पोजीशन में जब आ जाती है। तो ये रिसेशन पे अक्सर, क्योंकि ये है अपना टॉपिक थोड़ा टफ है, क्योंकि काफी सारे थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो पढ़ के बच्चे आए बैठे हैं, लेकिन प्रैक्टिस में इस तरह के दावे नहीं होते। तो आप इस पे थोड़ा एक आध इलस्ट्रेशन देके मजीद मिसाल मैंने दिया ना, आपका एग्रीमेंट हुआ कि आबादपुर में जमीन खरीदी आपने 5 मरले, 5 मरले चला गया उसमें मोटरवे, वो स्पेसिफिक तो आप काम नहीं करवा सकते, लेकिन जो पेमेंट आपने दी है वो तो इसी पे सर आपने सौदा किया, ए ने बी के साथ एग्रीमेंट किया कि ये जो मेरा सफेद घोड़ा है, ये मैं 5 लाख में आपको बेच रहा हूँ। पैसे देने से पहले पता चला घोड़ा ही मांग गया, सब्जेक्ट मैटर चीज तो इसीलिए सर मैं इसको आपको जनाब उसमें हम एक कर लेंगे किसी जैसे आपको जुम्मे लगाएंगे। मैं तो कह रहा था इंट्रोडक्शन के लिए आया था आपको सलाम करने में, लेक्चर के लिए, तो किसी जैसा आपको जुम्मे लगा देंगे, थोड़ा सा ये जो है जो इक्विटेबल रिलीफ्स हैं ये थोड़ा सा पढ़ा दें कैसे क्या। मैं तो तालिब इल्म हूं, मैं तो मुश्किल है ये जो आप सवाल कर रहे हैं, आई नॉट आंसर। असल में सर मैं आपके सिर्फ 1 सेकंड के लिए मैं इसलिए कह रही थी कि पार्टी आई है एक अगले दिन मेरे पास, उनका बनता ये दावा था उनकी प्रॉपर्टी चली गई है रोड में, अब वो आए हुए हैं मनसूख की अपना कैंसिलेशन में। तो मैं इसीलिए आपसे ये सवाल मैंने दोबारा पूछा कि इसको आप क्लियर कर दें ताकि मैं वो अपना दावा सिद्ध अपना कटा बजा रहने दो। इंजेक्शन जो होती है वो पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है। किसी शख्स को कोई काम करने का कहा जाए तो पॉजिटिव इंजेक्शन होता है। मसलन एक डॉक्टर ने आपसे अपनी फीस को ले ली है, अब आपको मेडिसिन नहीं दे रहा, तो आप इंजेक्शन जारी करवा सकते हैं, हुक्म इम्तनाई ताकीदी कि ये काम कानून के मुताबिक करना बनता है, आप करें। लेकिन आप ये नहीं कर सकते, एक डॉक्टर को आपने ऑपरेशन के पैसे दिए, डॉक्टर फौत हो गया, आप कहते हैं तो छोटा बच्चा ऑपरेशन कर दे इसका, तो वो नहीं करवा सकते। इसी तरह नेगेटिव इंजेक्शन होती है कि आप किसी को रिस्ट्रेन करते हैं टू परफॉर्म समथिंग। मसलन यहाँ पे एक ब्रांड है क्वालिटी एस्टेट, वहाँ पे एक बंदा काम करता है, उसने काम सीख लिया, उनका एग्रीमेंट हुआ है कि भाई ये बंदा जो है नौकरी छोड़ने के 5 साल तक आइसक्रीम का कारोबार नहीं करेगा और हमारी दुकान के सामने दुकान नहीं बनाएगा। अब वो क्या करता है जी, वहाँ से छुट्टी लेता है और उसके सामने शॉप बना लेता है, उसको रिस्ट्रेन करने के लिए कि he could not run his business in front of the business place, you can seek negative injunction। ये भी बहुत कम, बल्कि कभी नहीं देखा कि कोई नेगेटिव इंजेक्शन का केस। ये शायद हमारी अभी सबक थोड़ी है, 12-13 साल में बंदा सीखता क्या है। एग्रीमेंट से यहाँ पे इस तरह के लिखा होता है, नॉर्मली एग्रीमेंट होते हैं। नेक्स्ट प्लीज, एनी अदर स्लाइड प्लीज। माफी चाहता हूँ, आपको जहमत हो रही है, ये लिखा था इसलिए आपका कीमती वक्त ज्यादा ज़ाया हो गया। सर एक चीज पूछनी थी, ये जो नेगेटिव इंजेक्शन की आपने बात की है, वो शॉप तो नहीं बना सकता, क्या हम उसको इससे रिस्ट्रेन कर सकते हैं कि आप ये कारोबार नहीं कर सकते? यस यस, 57 स्पेसिफिकली रिकमेंडेड। एरर्स इन क्रिमिनल ड्राफ्टिंग,
आपका टाइम पूरा हो गया, जो सदर साहब ने मुझे टाइम दिया है वो पूरा हो गया। मैं माजरत के साथ 2-4 मिनट ऊपर लेना कर रहा हूँ। आज पहला प्रॉपर लेक्चर हो रहा है। क्रिमिनल साइड में बहुत सारे एरर्स हमने देखे हैं। वो जो 4 चीजें हमने काउंट की थी वो इधर भी अप्लाई होती है। आपने FIR करानी है, इस्तगासा दायर करना है, आपने प्राइवेट कंप्लेंट देनी है, आपने बेल एप्लीकेशन स्कूलदारी कुछ भी करना है, उसके पर्टिकुलर चेकलिस्ट पूरे होने चाहिए। FIR देने से पहले ये तो बताएं कि डेट कौन सी, जब आपने टाइम कौन सा। अगर डेट और टाइम आपने नहीं लिखी है, जो मर्जी जितनी मर्जी शहादत ले हैं, वो केस किसी मतलब तक नहीं होगा। डेट, टाइम और फिर प्लेस लिखें, किस प्लेस पे जो है अपना हुई है। और नंबर 4 जो है विटनेसेस लिखें कि क्या कौन से लोग अवेलेबल थे एट द टाइम ऑफ ऑफेंस जिन्होंने ये चीज़ें देखी। अब जो सिस्टम है कुदरत का, ये अल्लाह ताला का इमरान कुदरत है, एविडेंस की बेस पे चलना है। रोज़े क़यामत हमारा हिसाब होना है, शाखें दी जानी है, हमारे हाथ पाँव जिस्म का हर चीज़ जो है वो अपनी गवाही पेश करेगी अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान में ये चीज़ें हैं। तो अगर आप मेंशन नहीं करेंगे करेक्ट पर्टिकुलर्स जो भी हैं रिक्वायर्ड, तो फिर उसकी किसी तरफ जो है कोशिश करें कि FIR की दरखास्त किसी की ड्राफ्ट नहीं। कोई साहिल आपके पास आके कहता है कि ये मैंने एक दूसरा पर्चा कराना, जरा अच्छी सी जरा मुझे दरखास्त तो बना, मैं कहूँगा कि यू नीड नॉट टू ड्राफ्ट। उसने कहा सच्ची बात को हम करने के लिए बैठे हैं, ये झूठ बोलना है तो ना बोल के अच्छी बात नहीं है। क्योंकि जो कानूनी शहादत आर्डर है उसके उसमें एक प्रिविलेज कम्युनिकेशन है आर्टिकल 4 से लेकर 17 तक, कि वकील और क्लाइंट के माबैन जो कन्वर्सेशन होती है वो प्रिविलेज है, आप उसे डिस्क्लोज नहीं कर सकते जो है नहीं कर सकते। लेकिन आप एटलीस्ट उससे तो कह सकते हैं कि भाई ये झूठा हम केस नहीं करते किसी लोगों के पास, कई मिल जाते हैं वैसा भी करने वाले। अच्छा जी, ये मैंने आखिर में लिखा है रिलीज वारंट। समटाइम ये होता है कि जमानत आपकी होगी, मुचलका जमा हो गया, रोजगार चलेगी, बंदा जेल वाले मच गए। होता क्या है, FIR दर्ज होती है चोरी की 379 की या 380 की या 381 की किसी। ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन पुलिस वाले उसमें एक दफा लगा देते हैं 411, या चोरीशुदा चीज बरामद हो जाती है, या कोई उससे पैसे रिकवर कर लेते हैं कि ये इतने पैसे इतने पेश किए या इसके वालद ने पेश किए। और अब वो जब FIR दर्ज होती है उस वक्त तो चोरी की ऑफेंस होता है 380 या 379। जब बेल ग्रांट होती है, जब बंदा जुडिशल रिमांड पे जाता है तो 411 लगा होता है बंदा जेल में चला जाता है। कोशिश करें रिमांड पेपर जरूर देखें। जब भी व्हेनेवर यू आर फिलिंग द रिलीज ऑफ कार यू मस्ट कंसल्ट विद द लेटेस्ट कंटेंट्स ऑफ द रिमांड पेपर। उसमें अगर दफा जो लिखी है वो लिखनी चाहिए ताकि मुश्किल न पेश। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सर बेल पिटीशन में भी ये लिखना लाजमी है? सर्टनली लिखेंगे, बेल में 411 में लिखनी तो फिर लोग वहाँ भी लिखने की जरूरत नहीं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस। थैंक यू। लैपटॉप दे दें।